केरला का मानसून शायद शुरू होने वाला है बिकॉज द रेन हैव स्टार्टेड ऑलरेडी एंड इन केरला लाइक आई टोल्ड यू द रेन इज कॉल्ड एज मरा. So it's like in Malayalam it is called as Mara, but if some of you are from Tamil Nadu or might be another place, so tell me now what is rain called in your location. So now in the morning time also you can see like the weather is still the same, so I am having my breakfast, so I have to go to the office very fast, and while going to the office rain started. You know, the basic thing is like whenever rain is happening too much over here, I have never seen a rainy holiday. Anyway, for employees it's not there, but still like no work stops in Kerala. People who are outside from Kerala, they might understand why am I saying like no work stops in Kerala, because generally I think the Kerala's drainage system is really very good, and also there is like the kind of soil which is available in Kerala, it absorbs the water very soon. So that's what I know. If you have another theory, then you share with me. So rain is happening too much and I'm still waiting to go outside because it's not easy to walk in the rain, but it's not that difficult also. And now I have reached to my office, and you can see like I have started during the rainy time and now it is so much sunny. Kerala की सबसे बड़ी speciality है that if too much rain is happening, then also sun have the ability to come. I think Kerala में means मलयालम में एक proper word होता है उसके लिए. मतलब केरला में ऐसा बोला जाता है कि किसी की वेडिंग हो रही है, पता नहीं ऐसा कोई चीज़ बोली जाती है. आई थिंक फॉक्स की वेडिंग होती है, तभी ऐसे जो सन और बारिश है एक साथ आते हैं, सन और रेन एक साथ आते हैं. सो आई एम नॉट वेरी श्योर. तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा ये बात कितनी सच है. नहीं, मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताया था इस बारे में. दैट्स हाउ आई एम टेलिंग यू. सो now you can see like it's too much sunny, but I am in my corporate building as of now, so I think it's not affecting me that much. So I'm going to my office now. So I am going to answer you the most asked question from me, that is what do I do in Kerala. So basically I am working in an IT company as a client relationship manager for almost, I think I have completed 3 years in Kochi, and before that I was in Thrissur. I also worked over there for 1 year. So that's what I do, and during the evenings I am having chaya. So generally I do not come over here for the chaya. This is very famous tea spot near phase 2, that is I think tea leaf. तो यहाँ पर सारे ही लोग चाय लेने आते हैं. केरला का वेदर बहुत ही चेंजेबल हो रहा है इस टाइम, बिकॉज आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे आप जब गर्मियाँ आती हैं तो ये वाटर बॉडी है पूरी, जो आप कह सकते हो कि कन्वर्ट हो चुकी है प्लांट्स में. मतलब यहाँ पे ये जो वाटर बेस्ड प्लांट्स होते हैं वो आ गए हैं. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है ड्यू टू एक्सट्रीम समर. दिस इज़ द कंडीशन ओवर हियर. एंड वंस द रेन स्टार्ट्स, दैट मीन्स probably by next week the rainy season is going to start, then all this will turn into water. Here when rain comes, it's so drastic. Like last year, if you have seen my videos, the rainy weather was super drastic. One thing I have noticed in Kerala within the Malayalis, that in every city, every town, there will be a famous Thattakada. Okay, Thattakada is like, those who all are not Malayalis, Thattakada is basically चाय की टपरी in Hindi. तो यहाँ पर केरला में भी बहुत ज़्यादा चाय का ऑब्सेशन है, जैसे कि हर जगह होता है. ये मैंने यूपी में देखा था, लोगों को चाय का ऑब्सेशन है. राजस्थान में देखा था, और अब मैं देख रही हूँ कि केरला में भी लोगों को चाय का ऑब्सेशन है. तमिलनाडु या अदर लोकेशंस में है या नहीं वो मुझे कंफर्म नहीं है. अगर आपको पता हो तो आप मुझे बताइएगा. तो अब आप जो देख रहे हैं वो रियल रेनबो है, जो कि इन्फो पार्क में नज़र आ रहा है आज, बिकॉज आई टोल्ड यू ना, रेन एंड सन बोथ कम्स टुगेदर. सो दिस काइंड ऑफ रेनबो कैन ओनली बी विजिबल इन केरला, एंड टुडे इट इज़ लकीली विजिबल टू ऑल द टेकीज इन इन्फो पार्क. आप में से किस किसने रेनबो देखा था, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे पता चले हाउ मेनी ऑफ यू आर वाचिंग फ्रॉम इन्फो पार्क. जस्ट ऑल्सो लाइक टैग मी और लाइक मैसेज मी इन द कॉमेंट, सो दैट आई विल गेट टू नो हाउ मेनी पीपल आर देयर फ्रॉम इन्फो पार्क इटसेल्फ. आप देख सकते हो, मैंने पहली बार रेनबो के सारे कलर्स इतना क्लियरली देखे हैं, बिकॉज इतना क्लियर रेनबो तो मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा. आपने देखा है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट दिस इज़ द फर्स्ट रेनबो आई हैव सीन दिस मच क्लियरली. एंड नाउ इट्स लाइक तरंग सीजन गोइंग ऑन इन इन्फो पार्क. तो
came straight from the homes. So now I have taken water metro bus to Kakanad. So now I am going to Thrissur. So for going to Thrissur, I have to reach till Alva, and I am waiting here for Thrissur bus. So this is a random stop. I even do not know which place is this exactly in Alva, but I am waiting here to see the bus of Thrissur if it comes on time. Basically in Kerala, the traveling system is really good, but you have to see you are not traveling during the peak time, because if you're traveling in the peak time, this KSRTCs will be filled. And the most important part in KSRTCs, this bell, this I have only seen in Kerala. What will happen, no? This is the way how conductor and the driver communicates with each other. So basically, instead of shouting, they just ring the bell. This bell is connected to entire bus, where it has to be only accessible by the conductor. So the conductor will ring the bell, and the ringing the bell means either go go go, either stop. So I do not know how they are communicating, but this is the very interesting way of communication I found till now. The moment I have stepped into Thrissur, my neighbor auntie have given this chakka to my mother, and my mother gave it to me and told me just take the chakka, clean the chakka and take only the fruit part. So basically now I'm going to reveal a very big thing, that the ripe chakka is eaten in Kerala, and I think in Maharashtra also it is being eaten. But in north side, I think if you talk about Rajasthan, UP and all, we have never seen ripe chakka. I think because of the atmospheric condition or whatever you can say, we have never ever seen ripe chakka. So first time I very well remember, one of the neighbor in Olari Kara, they gave chakka to us, and we were we have to make a curry of it, right? So they told, no, this is not curry chakka, this is fruit. So then only we got to know that chakka is eaten like a fruit, and basically chakka is a fruit only. So if we go into the history part, no, so chakka, basically the real name is chakka only, but when the Britishers came, they were not able to pronounce it as chakka, so they started calling it jack. I do not know how they were pronouncing chakka to jack, but somehow this fruit name has been derived from there only, jackfruit. So jackfruit is not a real name. The real name is chakka only, but just because they were not able to pronounce, that's why the name is still as jackfruit. यूपी में हम इस चक्का को बुलाते हैं कटहल, तो हम ज़्यादातर बोलते हैं कटहल की सब्जी खाते हैं. एनीवेज, दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट चक्का. और आज हम बनाने जा रहे हैं दाल मखनी, जो कि आज एक्चुअली मेरा खाना बनाने का मन नहीं था, तो मैंने ये रेडीमेड दाल मखनी खरीदी. मैंने सोचा आज मैं इसका रिव्यू करती हूँ, बट ये मुझे थोड़ा वियर्ड लगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट पैकेट जो है वो बॉईल करना था, तो मुझे थोड़ा सा अनहेल्दी लगा. बट आई डू नॉट नो वेदर दिस पैकेट इज़ दैट इको फ्रेंडली और नॉट, आई डू नॉट नो, बट दाल मखनी वॉज रियली टेस्टी. I like this too much, and it was very much creamy also, but I found it little bit costly. Kerala में और भी alternatives आ चुके हैं ready-made food के, so at times when I do not feel like cooking, I felt like I can use it, but somewhere that preservative taste comes, and I personally do not like it. Anyway, अब मैं वापस जा रही हूँ कोची के लिए, और मैं आ चुकी हूँ अपने फेवरेट त्रिशूर के रेलवे स्टेशन पे. तो यहीं से मैं पहली बार कोची के लिए गई थी, तो यहाँ से मेरी थोड़ी सी, आप कह सकते हो कि त्रिशूर रेलवे स्टेशन में मेरी पर्सनल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, और मैंने टिकट ऑलरेडी बुक कर रखी थी, इसलिए मुझे सीट मिल गई थी. अदरवाइज़ यहाँ पे सीट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और आप मुझे देख सकते हैं मेरे लोग बहुत ही ज़्यादा अनरिकॉग्नाइजेबल है, बिकॉज मैं बिल्कुल चेची की तरह आती हूँ. मुझे कोई ऐसे तो मैं कोई बड़ी सेलिब्रिटी भी नहीं हूँ, बट स्टिल मैं बहुत, जब ट्रैवल करती हूँ तो बहुत ज़्यादा बैड वाला लुक रखती हूँ. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई कम्फर्ट लेवल, सो माई हेयर्स विल बी टाइड एंड ऑल. सो जब भी आप त्रिशूर से ट्रैवल करेंगे, आपको ये सारे व्यूज़ देखने को मिलेंगे. एंड नाउ आई एम बीटिंग द कॉफ़ी बीन्स विद माई फ्रेंड. सो वाई आई एम बीटिंग द कॉफ़ी बीन्स, लेट मी शो यू वाई. बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव द फ्रेश कॉफ़ी. आप देख सकते हो ये कॉफ़ी पे पैटर्न बना रहे हैं. अच्छा, मुझे ये बहुत ज़्यादा ईजी लगा करता था, बट द मोमेंट आई हैव सीन हाउ दे आर मेकिंग इट, एक्चुअली इट्स नॉट अ ईजी गेम. ये बच्चों के बस की बात नहीं है, ओके. सो वो जो हर्ट वाला बनाते हैं ना कॉफ़ी में,
दैट इज़ नॉट एट ऑल ईजी, लाइक आई रियलाइज्ड इट आफ्टर सीइंग इट। एनीवे, मुझे तो कॉफ़ी लेने से मतलब है। केरला में आके ही मैंने कॉफ़ी पीना स्टार्ट किया है, अदरवाइज आई नेवर लाइक्ड कॉफ़ी एनी मोर। बट केरला की फ़िल्टर कॉफ़ी यू शुड रियली ट्राई, बट द आयरनी इज़ आई हैवंट एवर ट्राइड। सो माई कॉफ़ी इज़ रेडी, सो लेट मी हैव इट फर्स्ट। सो हाउ इज़ माई कॉफ़ी लुकिंग? आप में से किसी को कॉफ़ी बनानी आती हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मॉर्निंग एवरीवन, आज कोची में हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश और मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है आज, तो ये समझ लीजिए आज मंडे का डे है और सब लोग अपने अपने घरों से आ रहे हैं और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। लकीली मैं मंडे को ना आके संडे को ट्रेन बुक करके आ गई थी। बाय द वे संडे को भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी बिकॉज इट वॉज अ लॉन्ग वीकेंड, सो बिकॉज ऑफ दैट इट वॉज टू मच रश। So all the KSRTCs were full, all the buses were full, everything was full. So finally I have reached over here. Like you can see, it's like a very good weather over here, but all the buses are overloaded with people. And I know it is very hard because I generally travel like that when I'm coming from home. So that's like even if you have seat no in KSRTC, people will come and give you the bags. So that is like you have to be kind. For sure you have to take care of their bags. But sometimes you are overloaded with the bags, so even if you book the seat, that is the situation you have to go with. And now it's a very good weather accordingly, and I think the entire weekend is going to be this rainy because it was so sunny over here, so it was so required for this rain. अच्छा, मुझे पर्सनली मानसून बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं यूपी में थी तभी मैं मानसून का बहुत ज़्यादा वेट किया करती थी, बट केरला में मेरा मानसून डबल अच्छा हो जाता है बिकॉज़ यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है ना वो बहुत सूदनिंग हो जाता है, सारे डैम्स ओपन हो जाते हैं। सो दैट्स वाई केरलाज मानसून इज़ वेरी ब्यूटीफुल टू सी। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है और आप देख सकते हो ये है हमारा इन्फो पार्क, और इन्फो पार्क में एक प्रोग्राम हो रहा है जिस प्रोग्राम का नाम है तरंग। तो ये इन्फो पार्क स्क्वायर है, यहाँ पे सारे इवेंट्स होते हैं और मैं भी यहाँ पर आ चुकी हूँ ये प्रोग्राम देखने। तो ये प्रोग्राम ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से चल रहा है, काफ़ी सारी कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं इस प्रोग्राम में। तो बेसिकली हम लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, हम लोग बस देखने आए हैं। ये प्रोग्राम बहुत लेवल के डांस होते हैं, इवन काफ़ी सारे मूवी प्रमोशंस भी होते हैं यहाँ पे। बट आई थिंक सो फार दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द पीपल हु आर वर्किंग हियर, बट आई हैव ऑल्सो सीन द आउटसाइडर्स कमिंग, सो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इवन एनीवन कैन अटेंड दिस और नॉट, बट ये काफ़ी बड़े लेवल पर होता है। सो लास्ट 3 ईयर्स से मैं यहाँ पर ये इवेंट देख रही हूँ। आप देख सकते हो कितने सारे लोग एक साथ आए हैं। अच्छा, मेरा फेवरेट पार्ट होता है किसी भी इवेंट में जब त्रिशूरपुरम का गाना चलता है ना, गाना मुझे सिंग करना नहीं आता, बट बेसिकली मेरे लिए वो एक बहुत ऐसी टची फीलिंग होती है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, ये सॉन्ग मुझसे रिलेट करता है। ये जो कांदा सॉन्ग है त्रिशूरपुरम का, ये मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी क्रिएट करता है बिकॉज आई लव त्रिशूर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप मुझे बताइएगा, और आप आगे क्या देखना चाहते हैं वीडियोस में वो भी मुझे जल्दी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मैं सारे कमेंट्स रीड करती हूँ और उनका रिस्पॉन्स भी देती हूँ। सो कमेंट फास्ट।